बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की और सेहत की बेहतरीन हालात में होंगे इंशाल्लाह। Hope and pray everyone is in the best state of health and iman, inshallah. Lesson number 7th A, Understand the Quran the easy way, level 1, Salah. First revision questions. Ashhadu means, ashhadu के क्या मायने हैं बताइए? Ashhadu means I bear witness, I state, I believe, or I act upon. Which one is correct? Okay, let's check the answer. A is correct. MashaAllah, tabarakallah, correct answer है. A is correct. Next, translate mir rabbikum, for your Rabb, from your Rabb, from our Rabb, from his Rabb. Which one is correct? कौन सा सही है? मिर रब्बिकुम. आंसर चेक करते हैं. B is correct, from your Rabb. In this lesson, you will learn रुकू एंड सुजूद अस्कार. इंशाल्लाह आज के लेसन में हम रुकू के और सुजूद के अस्कार पढ़ेंगे. हम रुकू में पढ़ते हैं सुबहाना रब्बिल अजीम, तो हम सबसे पहले इसे ही लेंगे. सुबहाना, सुबहाना मीन्स ग्लोरी बी टू, पाक है तू. सुबहाना, ग्लोरी बी टू, पाक है तू. फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट और डेफिशिएंसी, हर ऐब से अल्लाह ताला क्या है? पाक है, उसमें कोई ऐब नहीं है. सुबहान अल्लाह, अल्लाह इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट और डेफिशिएंसीज. अल्लाह हर ऐब से, हर कमी से, हर नुक्स से पाक है. रब्बी, रब्बी मीन्स माय लॉर्ड, मेरा रब. पाक है मेरा रब. अल अजीम, द मैग्निफिशेंट, अजमत वाला. द मैग्निफिशेंट, अजमत वाला. अल अजीम किस टाइप का वर्ड बन रहा है बताइए? अल अजीम किस टाइप का वर्ड बन रहा है? इसमें मारफा है. करेक्ट, इसमें मारफा बन रहा है. Try to imagine and feel the four things mentioned here. Subhan, my Rabb is free from any defect or imperfection. He is not an oppressor or unjust. He has not created anything in vain. He neither get tired nor slumber. He is not weak and does not fear anyone. There is no flaw in his orders. I do not have any complaint for the test in my life. Rab, the one who takes care of all of me and everything around me. He is the sustainer, provider of everything that I need. He is the one who controls each and every one of my 1 trillion cells every second of my life. He is continuously supplying and feeding me with oxygen. He is smoothly running all my body system, 11 major organs system like blood circulation, digestion, immunity, like etc. Al-Azim, he is the magnificent. No one can overpower him nor pressure him to do anything. इस जिक्र में 4 बातें हैं, उनको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए. मेरा रब, सुभान, मेरा रब पाक है हर ऐब और कमी से. वो जालिम नहीं, नाइंसाफी करने वाला नहीं, बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं. उसको न थकन आती है न नींद. वो कमजोर नहीं, उसको किसी का खौफ नहीं, उसके हुक्म में कोई खराबी नहीं. मैं जिंदगी में जो इम्तिहान वाले हालात हैं उन पर मुझको कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जब मेरा रब पाक है, मैं हम कह रहे हैं ना सुबहाना, सुबहाना, सुबहाना रब्बिल आला या सुबहाना रब्बी या सुबहान अल्लाह, तो मेरा अल्लाह पाक है, वो हर ऐप सब. तो फिर जब वो हम ये चीज की गवाही दे रहे हैं, जब अल्लाह पाक है तो उसकी हर चीज, उसका हर फैसला सही है. ये हम में कमी है, मुझ समेत मैं अपने आप को भी इस चीज में काउंट करूंगी, क्योंकि हम बशर हैं,
ہم انسان ہیں اور ہم میں کمی ہے کہ ہم اس کے فیصلوں پہ ثابت قدم نہیں رہتے، ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ اس نے جو کیا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ ربی وہ رب ہے ہماری ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے اور پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے کروڑوں خلاؤں کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے جسم کے اربوں خلاؤں میں جو ہر جو حرکت کرتی رہتے ہیں بغیر کسی تنہائی کے مدد کرتا ہے، وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے، صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے خون کا نظام، ہاضمے کا نظام وغیرہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے، اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا ہے۔ مثلاً جب ایک ماں باپ اپنے بچے کے سامنے دوسرے سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو اس بات میں پیار جھلکتا ہے، تو ہمیں بھی اپنائیت، محبت اور عقیدت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ میرا رب، میرا اللہ سبحان ہے، پاک ہے، اس کے کسی فیصلے میں کوئی خرابی نہیں، وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے، کوئی اس پہ غالب نہ آ سکے، وہ سب پہ غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ Let's practice سبحان رب العظیم، Glory be to my Lord the magnificent، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ Translate wa subhanallahi, and Allah is exalted and glory be to Allah. Allah is exalted, glory be to Allah. Which one is correct? Okay, let's check the answer. B is correct. MashaAllah, tabarakallah, ismat correct. Glory and glory be to Allah. Which zikr teaches that Allah's command are free from defects? Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Let's check the answer. B is correct. سبحان اللہ، سبحان اللہ میں سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی بھی حکم، کسی بھی فیصلے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ نیکسٹ، جب ہم رکو سے اٹھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لیمن حمیدہ، رائٹ؟ سمیع اللہ، اللہ has listened، سن لی اللہ نے، سمیع اللہ، اللہ has listened، سن لی اللہ نے۔ لیمن، لیمن ٹو دا ون ہو، اس کی جس نے، لیمن ٹو دا ون ہو، اس کی جس نے، حمیدہ ہو، حمیدہ، پریز ہم، کیا کری؟ تعریف کی، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ has listened to the one who praised him۔ Allah listen to everyone. Here it means that Allah respond to the one who praise him and answer his prayer. Allah does not need our praise for him. It does not benefit him at all. He does not lose anything if we don't praise him. Only we benefit by praising him. Correct. تو دیکھیں اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ عظمت والا، اللہ سب کی سنتا ہے۔ یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا مطلب ہے کہ یعنی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنی چاہیے۔ ربنا ولک الحمد، اللہ تعالی ہمارے حمد کرنے کا محتاج نہیں، ہمارے حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہیں کرنے سے اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ حمد کرنے سے پورا فائدہ ہم ہی کو ملتا ہے، کیونکہ جب ہم حمد اللہ تعالی کی تعریف بیان کریں، آپ اپنے پہ رکھ کے سوچیں، ہم اپنے آپ کے پہلے خود پہ رکھتے ہیں، ہم اگر اللہ سے تو بہت چھوٹے ہیں، اللہ ہم تو کسی اس میں نہیں ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی آپ کی پریز کرتا ہے، آپ کو تعریف کرتا ہے، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا؟ جب یا آپ سے کوئی چاہنے والا ہے، آپ کا لو ونز میں سے آپ کو کوئی پریز کرتا ہے، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ وہ تو خالق ہے، مالک ہے ہمارا، وہ ہمارا کریٹر ہے، پرووائڈر ہے، وہ اس کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو سوچیے اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ میرا بندہ میری تعریف، میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ تو ہمیں دل سے شکر کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔
Let's practice Sami Allahu liman hamida. Allah has listened to the one who praised him. सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की. Sami Allahu means listens, Allah listens to, Allah has listened, or Allah has answered. Which one is correct? Very good. Correct answer. C is correct. Allah has listened. सुन लिया अल्लाह ने. फिर आ रहा है रब्बना वलकल हम. ऑलरेडी हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. रब्बना आवर लॉर्ड, ए हमारे रब. वलका एंड टू यू. लका क्या हो रहा है? वाव किस टाइप का वर्ड है? हरफे अतफ है. एंड लका जार मजरूर हो रहा है. वलका एंड टू यू, तेरे ही लिए. अलहम्द, बी ऑल द प्रेज, हर किस्म की तारीफ है. ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है. और तारीफ अल्हम्दु आया ना, अब यहाँ पे अल्लाह की तारीफ है. हम के दो मायने पढ़े थे कि हम जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तारीफ के और शुक्र के. कि हर तरह का शुक्र और हर तरह की तारीफ, तमाम तारीफ सिर्फ किसके लिए? अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए है. हम praise and thanks. We can praise and thank Allah from the depth of our heart. It, if we just keep in mind the meaning of Rabbana while saying it, glorify Allah wholeheartedly with the feelings of gratitude and praise. Say it with three feelings. You are Rabb, our Rabb, Hamd belong to you only. Beshak. रब्बना कहने रब्बना कहते हुए इस लफ्ज के मायने को जहन में लाएं तो खुद ब खुद हमारे दिल से अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र निकलेगा. हमद के यही मायने हैं, तारीफ और शुक्र. पूरे दिल से, कभी शुक्र के जज्बे से भरपूर और कभी तारीफ के जज्बात के साथ हमद कीजिए. वन मोर जिक्र ऑफ रुकू. एक और जिक्र हमारा रुकू में मिलता है, आता है. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू से दिस व्हाइल रेजिंग हिज हैंड फ्रॉम रुकू. रुकू का एक और जिक्र है. रसूल करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो कहते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम, मिलस समावाती व मिल अर्दी व मिल मा बैनहुमा व मिला मा शीता मिन शैइम बा. तो ये तिरमिजी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी इसे भी पढ़ा करते थे. मिला समावाती. मिला समावाती, मिला मीन्स फिलिंग, भरकर. असमावाती द स्काईज, आसमानों को भरकर. आसमानों को, आसमानों के भरकर. असमावाती किस टाइप का प्लूरल बन रहा है? बताइए किस टाइप का वर्ड है, किस टाइप का प्लूरल बन रहा है असमावाती? इसमें मार्फा है, फेमिनाइन है और साउंड प्लूरल है, जमा सालिम है. असमावाती अलीफ ता का प्लूरल बना रहा है. समा सिंगुलर है, समावात इसकी जमा है, तो ये साउंड प्लूरल है, फेमिनाइन फॉर्म है असमावाती. वमिला वमिल अल अर्दी एंड फिलिंग द अर्थ. और जमीन के भरने के बराबर. और जमीन के भरने के बराबर. वमिल एंड फिलिंग व्हाट इज. और भरकर जो. और भरकर जो. मा बैना हुमा इन बिटवीन देम, उसके दरमियान है. क्या है? बैना मीन्स बिटवीन, दरमियान. हुमा उन दोनों के. हुमा जो हमने अटैच प्रोनाउन सीखे थे ना, तभी अपने डुअल वाले नहीं सीखे. तो डुअल में हुमा यूज होता है डुअल के लिए, दो के लिए. तो यहाँ पे दो क्या चीज की बात हो रही है? जमीन और आसमान. जमीन और आसमान के भरने के बराबर और जो कुछ भी उन दोनों के दरमियान है. However much we may praise Allah, we can never fulfill the right of praising. बेशक. वमिल एंड फिलिंग और भरकर. एंड फिलिंग और भरकर. मा वॉट जो. वो तमाम चीजें जो. सॉरी. शीता यू विल, तू चाहे. शीता
means you will, tu chahe. Min shaim, from anything, किसी चीज में से. Min shaim, from anything, किसी भी चीज में से. बादू, after this, इसके बाद. After this, इसके बाद. The word of this zikr are amazing. Look at the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He passed through continuously trial and tribulations. He did not have even two fulfill consecutive meal in his prophetic life. In addition to that, he was persecuted for almost 13 years and his city Medina was attacked by armies for several years. Keep this in mind and look at the words of this zikr expressing thanks and gratitude of Allah. No human can reach even a fraction of what the Prophet ﷺ had expressed in these words. His action indeed were far superior than his words. تو یہاں پہ بہت غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں. اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے جس میں آپ مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہے, اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے اور آپ کو دو وقت کا ایک کے بعد ایک دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا. اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیے جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کے قریب بھی کوئی انسانی کلام پہنچ ہی نہیں سکتا. جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کو شکر گریٹیٹیوڈ سے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے. ایک غیر مسلم پروفیسر نے یہ مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریے, گویا آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم و شان ذکر کو دیکھیے جس میں آپ سارے آسمان, ساری زمین اور سب کچھ شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں. بلکہ آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے. آپ کہتے ہیں اے اللہ, زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھر کر. گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ, اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھی بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا. واللہ عالم. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکر کے جذبات, گریٹیٹیوڈ کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم اور طریقہ دیا ہے, اس کی دھول تک بھی آج کے کامیابی کے گرو یعنی کہ سکسیسفل ٹرینر پہنچ بھی نہیں سکتے. بالکل ہمارے اندر شکر کے جذبات اگر ہوں گے, ہم ہر چیز سے فری ہوں گے, ہر بری چیز سے. ہم بے شک میں اپنی بھی بات کروں گی, ہم انسان ہیں, ہم نہیں کر پاتے اپنے فیلنگز پہ, اپنے جذبات پہ کنٹرول, لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے, ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہیں کرنا کہ نہیں مجھ سے تو ہو ہی نہیں رہا, میں کروں گا ہی نہیں, چھوڑ کے بیٹھے نہیں. ہمیں کنٹینیوسلی ٹرائی کرنا ہے. ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو دیکھنا ہے کہ میرے نبی نے تو کتنا کچھ برداشت کیا ہے, تو اللہ نے جب ان کی مدد کری ہے تو اللہ ہماری کیوں نہیں کرے گا. ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں, لیکن صرف ہماری نیت تو ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ سے اللہ کو مانگ رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کو نہیں, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بہت چھوٹا سا فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک مومن میں, صرف ایک کہا اور کی کا فرق. مسلمان اللہ کو مانتا ہے, مسلمان میں کوئی وہ نہیں ہے, ہر مسلمان اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. تو ہمیں اللہ کی ماننے والا بنا. اللہ کو ماننے والے تو ہم تو بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے, ہم نے اس میں کوئی وہ نہیں کرا کہ بھئی ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ تو اللہ کا انعام ہے ہم پہ, رحمت ہے اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلم فیملی میں پیدا کیا, ہمیں اس پستی سے نکالا, ہمیں شرک سے بچایا. لیکن اب ہمیں کیا بننا ہے, اللہ کی ماننے والا بننا ہے. جو سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں آتا ہے نا, لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین, کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو ہمیں متقی بننا ہے تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے. Let's practice. مل السماوات ومل الارض وملء ما بینہما, filling the skies and filling the earth and filling what is in between them.
آسمان اور زمین کے برابر اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کے برابر. وَمِلْ sorry وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ, and filling all those things what you will from anything from this, اور اس کے بعد جو کچھ تو چاہے اس کے برابر. ٹرانسلیٹ بینہم, بینہم کو ٹرانسلیٹ کیجئے between us, between me, between you all, between them. Which one is correct? Let's check the answer. D is correct, between them. Next, fis samawati. In the skies, in the skies, in sky or in the sky. Which one is correct? Fis samawati. इंग्लिश में बी करेक्ट है एंड उर्दू में ए, आसमानों में. प्लूरल फॉर्म है ना. असमावाती क्या है? जार मजरूर हो रहा है यहाँ पे. इन द स्काइज, आसमानों में. जिक्र ऑफ सजदा. अब हम सुजूद के अस्कार को लेंगे. सजदे में हम क्या पढ़ते हैं? सुभाना रब्बिल आला. सुभाना ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ग्लोरी बी टू, पाक है तू. रब्बी, माय लॉर्ड, मेरा रब. पाक है मेरा रब. We have learned this already in Ruku. आला, the exalted, सबसे बुलंद है. क्या है? सबसे बुलंद है. यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्रीज यूज हो रही है जैसे हमने पहले भी पढ़ा था. कबीर मीन्स बड़ा, बिग. अकबर मीन्स उससे भी बड़ा. सगीर मीन्स स्मॉल, छोटा. असगर उससे भी छोटा. कसीर मीन्स मोर, ज्यादा. अक्सर मीन्स उससे भी ज्यादा. अलीउन, हाई, बुलंद, ठीक है, ऊंचा. एंड आला, उससे भी ज्यादा ऊंचा, बुलंद तर के समझ लीजिए आप. तो अल्लाह क्या है? आला है. द एग्जॉल्टेड, वो सबसे बुलंद है. First, Allah is free from defects. He is Rabb. He is my Rabb. He is Al-Ala, the highest, the topmost. I am in the lowest position on this earth, and my Rabb is the highest on his throne. We are nearest to Allah in the position of sajda. Patient, bilkul. While reciting tasbih, we bow down and we put our face on earth and say, Rabbi, with love and affection, as if we are saying, Oh Allah, I am totally satisfied and do not have any complaint. If we do tasbih with this feeling and manner, then we can develop a strong positive attitude. The present day so-called success experts can't give in even 1% of it. Remember, whatever Allah does, it is perfect. The situation we are in is either a test and or due to our own faults. We should pray to Allah to help us do our best in whatever situation we are in or change it the best way. This is the secret of success. बेशक. और इसी चीज पर हमें अमल करना भी चाहिए. आला बुलंद है. अली मीन्स बुलंद और आला मीन्स सबसे बुलंद. सजदे की हालत मुकम्मल सुपुर्दगी की है. इसमें भी चार बातें हैं, उनको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए. पहला, अल्लाह की पाकी. दूसरा, उसका रब होना. तीसरा, अपनाइयत से कि वो मेरा रब है. और चौथा, उसकी बुलंदी. पहले तीन का जिक्र सुभान रब्बिल अजीम में आ चुका है. अल आला यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद. मैं नीचे अपना सर जमीन पर रखे हुए और अल्लाह अर्श पे सबसे ऊपर. ये बंदे की सच्ची पोजीशन है. बंदा अल्लाह के सबसे करीब सजदे में होता है. बिल्कुल, जब हम सजदे में होते हैं तो हम अल्लाह सुब्हान व तआला के सबसे नजदीक होते हैं. तस्बीह का पैगाम जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर इस दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारनी है तो इंसान के अंदर दो अहम चीजें होनी चाहिए: मुस्बत रवैया यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, और शुक्र यानी कि ग्रेटिट्यूड. ऊपर शुक्र का जिक्र आ चुका है. हमारी नमाज की हर रकात का क़याम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और खत्म वलकल हम्द पर. अब
आइए हम तस्बीह को देखते हैं। तो अब ये देखिए कि हम जब सजदा करते हैं, और ये बिल्कुल करेक्ट बात है, हम किस अपने ऑफिस जाते हैं या भी हम नॉर्मली देखें, अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम स्कूल जाते हैं कितने वेल ड्रेस वेल मेंटेन होके जाते हैं कि हमारी टीचर या प्रिंसिपल के, या हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हम अपने बॉस के आगे अच्छे लगे, वो हमसे इम्प्रेस हो। तो जब हम अल्लाह सुब्हान व तआला के आगे खड़े होते हैं नमाज में, क्योंकि जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, हम सजदे में जाते हैं, तो हम इस तरह से अल्लाह के आगे सजदा कर रहे होते हैं कि जैसे अल्लाह हमारे सामने है। हम यही तो तसव्वुर करते हैं ना। तो हम क्यों वेल ड्रेस मेंटेन होके अल्लाह के आगे खड़े नहीं होते? हम कुछ भी पहनते, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमारा सतर खुल रहा है या नहीं खुल रहा, हमने अपने पूरा सतर ढाका हुआ है नहीं ढाका हुआ, या हमने अच्छे से वुजू किया है नहीं किया, मुकम्मल वुजू है या नहीं है, या जो हमारी सराउंडिंग है, या हम जिस पे जा नमाज में नमाज पढ़ रहे हैं वो कैसे। तो हमें ये सब देखना है, क्योंकि जब आप देखें, आप खुशगवार माहौल हो, अच्छा सा एटमोस्फेयर हो, आपकी जानमाज अच्छी हो, अगर आपसे हो सके तो उसमें कोई अच्छा सा इत्र लगा लें जिससे उसमें से फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, फिर नमाज पढ़ें, तो आप खुद ब खुद देखेंगे खुशी और खुजू पैदा होगा। फिर जब आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपने जब सजदा करा तो आपने क्या पढ़ा, आपने रुकू करा तो क्या पढ़ा, आपने कयाम करा तो क्या पढ़ा, तो उसमें क्या है, आपकी खुशी और खुजू और ज्यादा बढ़ेगा, और हम मोहब्बत के साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर सकेंगे, हम अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर सकेंगे, और अल्लाह ताला को यही पसंद है। लेट्स प्रैक्टिस सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू माय लॉर्ड द एक्सॉल्टेड। पाक है तू, ओ सॉरी, जी, पाक है तू मेरा रब, और क्या है, बुलंद है, सबसे बुलंद है। We are nearest to Allah in ruku while standing in salah, sajda while sitting in salah. Which one is correct? That's right. Check the answer. C is correct. सजदे में सबसे ज्यादा हम अल्लाह सुब्हान तआला के करीब होते हैं। To praise Allah from the heart, recite fast, ponder the attributes of Allah, recite with tajweed, ponder the favor of Allah. आंसर चेक करते हैं। बी, सी एंड डी आर करेक्ट। पॉन्डर द एट्रिब्यूट्स, अल्लाह की सिफात पर हमें गौर फिक्र करना है, तजवीद के साथ पढ़ना है हमें, और क्या करना है, पॉन्डर द फेवर्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के इनामात पे गौर फिक्र करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, कुरान पाठ हमारा कंप्लीट है। आई होप आप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है, बताइए। कुरान पाठ सबको क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर पोर्शन 7B। अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स स्टार्ट 7B। इस्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्म क्या है? नाउन, मीन्स एंड एट्रीब्यूट्स, और उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान क्या है कि वो अल से स्टार्ट होते हैं, तनवीन होती है, या फिर अलीफ ता का प्लूरल बन रहा होगा, या वाव या नून का। फिर आता है फेल। फेल क्या है? टेल अस अबाउट एन एक्शन, जिससे किसी काम के होने का पता चल रहा हो, कोई काम जाहिर हो रहा हो। थर्ड, हर्फ, पार्टिकल, जॉइन नाउन्स एंड और वर्ब्स, जो इस्म और फेल को जोड़ते हैं, या इस्म और फेल के बाद जो कुछ बचता है वो क्या होता है? हर्फ होता है, पार्टिकल्स होते हैं। हमने पार्टिकल्स पढ़े, हमने हर्फ अतफ पढ़े, और हमने इंटरोगेटिव पार्टिकल पढ़ा, हमने एक्सेप्टिव पार्टिकल पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइप के हम कर चुके हैं। और फिर हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट करा था। प्रेपोजिशन में हमने ला, मिन और अन पढ़ा। ला, लहू, उसके लिए, लहुम, उन सब के लिए, लका, आपके लिए, ली, मेरे लिए, लकुम, आप सबके लिए, लना, हम सबके लिए, या हमारे लिए। ठीक है। मिनहु, उससे, मिनहुम, उन सब से, मिनका, आपसे, मिन्नी, मुझसे, मिनकुम, आप सबसे, मिन्ना, हमसे।
अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे या हम सब से। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने बी पढ़ा था। बी मीन्स उससे। बी मीन्स हमने पढ़ा था ना, इन, साथ, से। बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बीना हमसे। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। अलैया, अलै, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर। आज हमारा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6 प्रपोजिशंस कर लिया। आज हमारा 7th प्रपोजिशन है इलई। इलई मीन्स टू या टू वर्ड, तरफ। ठीक है, इलई मीन्स टू या टू वर्ड, तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल है, इन अल्लाह वो सॉरी, इन अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। Indeed, we belong to Allah, and indeed, we toward Him will return. हम पढ़ते हैं ना, इन अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक अल्लाह ने हमें बनाया और हमें अल्लाह की तरफ ही लौट के जाना है। क्या है? बेशक हम अल्लाह के हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, इलैहि, तो इलैहि की वजह से ही पे जो ये जेर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है बताइए? जार मजरूर हो रहा है इसलिए आ रहा है। बताइए, इलाही पे जो जेर आ रहा है ही पर, वो जार मजरूर होने की वजह से आ रहा है। क्योंकि इलाही हरफे जार है ना, तो अपने बाद आने वाले इसम को तो मजरूर कर देता है, जेर की हालत दे देता है। तो क्या है? ये मजरूर हो रहा है। जी बिल्कुल मजरूर हो रहा है। और ये जो ही पर जेर आ रहा है, ये जार मजरूर होने की वजह से आ रहा है, राइट? बताइए, ही पे जो जेर आ रहा है, जार मजरूर होने की वजह से आ रहा है। आंसर कीजिए जल्दी से, सब बताइए। ओके, आपने कहा जी यस। तो मुझे ये बताइए, इससे पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमने जो इससे पहले पढ़े, जार मजरूर हो रहे थे, यहाँ पे तो हो रहा है, जेर आ रहा है। ठीक है, और हमने इससे पहले जो पढ़े थे उसमें तो जेर नहीं आ रहा था। हमने क्या पढ़ा था? एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, गिव मी अ सेकेंड। हमने पढ़ा था ना, जी, लहू, लहुम, लका। उसमें जेर क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो जार मजरूर तो वो भी हो रहे थे। हैं? बताइए, वो भी तो जार मजरूर हो रहे थे, पर उस पे जेर क्यों नहीं आया और इस पे जेर क्यों आया? ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने ये आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हमने हरफे जर स्टार्ट किया था, प्रपोजिशन स्टार्ट किए थे, तो मैंने आपको वहां बताया था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, ही हिम ये आ सकता है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा ये जार मजरूर की वजह से हरकत चेंज हुई है। ये पढ़ने की आसानी की वजह से हरकत चेंज हुई है, ये मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेसन में, कि पढ़ने की आसानी की वजह से यहाँ पे ये ही आ रहा है। कंडीशन तो कोई भी जार मजरूर हो वो बदल देगा, वो कंडीशन चेंज हो गई, लेकिन एराब, एराब नहीं बदलता, हरकत नहीं बदलेगी, वो क्या रहेगी? वो ही रहेगी। लेकिन अगर कभी ही और हिम आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा कि वो जार मजरूर हुआ है, वो इसलिए आ रहा है कि हम आसानी से पढ़ सकें। अगर ऐसा होता कि वो हरफ जर की वजह से आ रहा होता, तो फिर सारे prepositions के साथ भी यही काम होता। लेकिन बहुत सारों के साथ नहीं हुआ। हमने लहू पढ़ा, उसमें लहू में आपने लहू ही पढ़ा है, लही तो नहीं पढ़ा ना। तो ये ध्यान रखिए कि ये किसकी वजह से? पढ़ने की आसानी की वजह से। इलैही टू हिम, उसकी तरफ। इलैहिम टू देम, उन सब की तरफ। इलैका टू यू, आपकी तरफ। इलैया टू मी, मेरी तरफ। इलैकुम टू यू ऑल, आप सब की तरफ। इलैना टू अस, हम, हमारी तरफ या हम सब की तरफ। ट्रांसलेट कीजिए, इलैही राजिऊन,
to him we will return, to him we will return, oh sorry, to him we will return, B, with him we will return, for him we will return, from him we will return. Which one is correct? Let's check the answer. Correct. A is correct. To him we will return. Alhamdulillah. Translate ilayal jannati. Ilayal jannati. बताइए. In the paradise, to the paradise, for the paradise, from the paradise. Ilay al jannati. Let's check the answer. B is correct. To the paradise. Ilay का means अभी हमने क्या पढ़ा है? To, toward, तरफ, जन्नत की तरफ, जन्नत की तरफ. तो जार मजरूर मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार और फिर हम देख लेते हैं. जार मजरूर क्या है? इस्म और नाउन प्लस हर्फ जर यानी कि प्रपोजिशन. किसी भी इस्म नाउन से पहले अगर हर्फ जर यानी कि प्रपोजिशन आ रहा है तो वो इस्म को क्या कर देगा? जेर की हालत में कर देगा, मजरूर कर देगा. कोई भी इसमें मारफा हो या इसमें नकरा हो, जमा हो, वाहिद हो, कोई सा भी इस्म हो, अगर उससे पहले हरफ जर है तो वो उसको मजरूर कर देगा. जैसे यहाँ पर भी आ रहा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बी की वजह से इसमें जलाला अल्लाह वर्ड पर जेर आ रहा है, और मिनश शैतानी मिन की वजह से शैतान भी मजरूर हो रहा है, उस पर भी जेर आ रहा है. ओके. आप सबके सामने अब ये आयत है. इस आयत में से बताइए कि कहाँ पर जार मजरूर हो रहा है. बताइए जल्दी से, जार मजरूर कहाँ हो रहा है? देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए मिनन नासी हो रहा है ना, जार मजरूर हो रहा है. बिल्लाही जार मजरूर हो रहा है. बिल यौमी जार मजरूर हो रहा है. बिमुमिनीन जार मजरूर हो रहा है. ठीक है. इतने सारे हैं इसमें तो माशाल्लाह से कितने सारे वो जार मजरूर के हैं. इस आयत में बताइए कहां पर हो रहा है जार मजरूर? ये हो रहा है ना, फिल अर्दी हो रहा है जार मजरूर. फी हरफे जार है, अल अर्दी इसम है, और जेर की कंडीशन में फिल अर्दी जार मजरूर हो रहा है. लहुम जार मजरूर हो रहा है, टू देम. अल्हम्दुलिल्लाह. अब हमारे जार मजरूर हरफ जार कंप्लीट हो गया. अब हम देखेंगे जार मजरूर की तरह से ही है या अलग ही है. हम मुदाफ मुदाफिले के बारे में देखेंगे. मुदाफ मुदाफिले पढ़ेंगे. मुदाफ मुदाफिले मैं आपको समझा रही हूँ क्या होता है, फिर इंशाल्लाह उसको और तफसील से हम L2 में भी पढ़ेंगे. मुदाफ मुदाफिला दोनों इस्म होते हैं, नाउन होते हैं. मुदाफ फर्स्ट नाउन जो होता है वो मुदाफ होता है, और सेकंड नाउन मुदाफिला होता है. ये दोनों नाउन इस्म होते हैं. ये हो गया क्लियर आप लोगों को. और हमेशा याद रखिएगा जो मुदाफ होता है यानी कि फर्स्ट नाउन होता है उस पे कभी भी ना ही तनवीन आएगी और ना ही अल आएगा. ठीक है. ना अल आएगा, ना वो मारफा होगा, अल आएगा, ना ही तनवीन आएगी. लेकिन जो मुदाफ इलैह होता है उस पर तनवीन भी आ सकती है और अल भी ऐड हो सकता है. ठीक है. तनवीन भी आ सकती है और अल भी. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जब भी मुदाफ मुदाफिले बनेगा तो मुदाफ की वजह से मुदाफिले हमेशा जेर की हालत में ही मान होगा.
कभी भी मुदाफिले पे कोई और हरकत नहीं आ सकती, मुदाफिले जेर की ही हालत में रहता है, उसकी हालत कंडीशन चेंज नहीं होती, हमेशा वो जेर की कंडीशन में ही होता है, जेर में होता है मुदाफिले। ठीक है। मुदाफिले को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो वो का की के मायने देगा, या इंग्लिश में ऑफ के मायने देगा। और जब हम उसको उसका तर्जुमा करें तो हमें उन दोनों में क्या होना चाहिए, पोजेशन, बिलोंगिंग होनी चाहिए, एक ताल्लुक होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं रब्बुहू, रब्बुहू क्या है, मुदाफिले हो रहा है, लेकिन वहां पे अब हमें ताल्लुक पता चल रहा है, राइट। रब्बुहू, उसका रब, उसका रब, रब्बू का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब। यहाँ पे क्या है, हमें ताल्लुक, पोजीशन पता चल रहा है, बिलोंगिंग पता चल रही है, राइट। और आप देखेंगे कि जब भी मुदाफ के साथ मुदाफिले अगर अटैच प्रोनाउन बनकर आ रहा है तो अटैच प्रोनाउन फिर वो ही करेगा, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा, अपनी कंडीशन बदल देगा। ठीक है, दिखने में तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मुदाफिला के पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको आगे और भी बताऊंगी। लेकिन इसमें कुछ होते हैं, एक स्पेशल मुदाफ होते हैं जो हमेशा मुदाफी बनकर आते हैं, उनके बाद फिर जो भी आता है वो मुदाफिला बनता है। इसी उसमें से ही दो मुदाफ हैं, माआ और इंदा, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो माआ, माआ मीन्स विद, साथ, माआ मीन्स विद, साथ। जैसे कि एग्जाम्पल में है, इन अल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। इंडीड अल्लाह इज विद द पेशेंट वंस, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो मा मुदाफ है, असाबरीन मुदाफ इले है। ठीक है, तो अब हम इसे अटैच प्रोनाउन के साथ ऐड करके देखते हैं। माहू, विद हिम, उसके साथ, माहुम विद देम, उन सब के साथ, मा का विद यू, आपके साथ, माई विद मी, मेरे साथ, माकुम विद यू ऑल, आप सब के साथ, माना विद अस, हम सब के साथ। ठीक है, चलिए ट्रांसलेट कीजिए। माका, माका का क्या मायने है, विद यू ऑल, with us, with you, with them. Which one is correct? Let's check the answer. C is correct, with you. Next, हल मआका किताबा, हल मआका किताबा, नाम मआना किताबा, नाम मआकुम किताब, नाम मआहू किताब, और नाम मई किताब। Which one is correct? Okay, आंसर चेक करते हैं। डी इज करेक्ट, नाम ई किताब, हल माँ का क्या है, आपकी, है ना। और नाम में हमने जब का यूज हो रहा है तो उसके लिए हम या ये को यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज करेंगे, राइट। इन अल्लाह माना, indeed Allah was with him, with them, indeed Allah was with us, indeed Allah is with them, indeed Allah is with us. Which one is correct? इन अल्लाह माना, आपको चेक करते हैं। डी इज करेक्ट, माशाल्लाह तबारकल्लाह, इंडीड अल्लाह इज विद अस, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हमारा जो है मुदाफ आ रहा है इंदा, इंदा मीन्स विद, इंदा की भी मायने है विद। ठीक है, और इसको हम इंदा के मायने हैं विद, साथ, पास, इन सब के लिए हम यूज करते हैं इसको। तो इंदा हूँ, विद हिम, उसके पास। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, कम रियालन इंदा का, उसके पास, आपके पास रियाल कितने हैं, या कितने रियाल हैं आपके पास, हाउ मेनी रियाल्स विद यू, आपके पास कितने रियाल हैं। इंदहू विद हिम, उसके पास, इंदहुम विद देम, उन सब के पास। इंदा का विद यू, आपके पास,
in thee with me, میرے پاس, indakum with you all, آپ سب کے پاس, اور indana with us, ہم سب کے پاس. Okay. اب ہم اس کا فیمینائن فارم دیکھتے ہیں. الیہی, الیہی, الیہی near him, oh sorry, الیہی to him, الیہا to her, indahu near him, indaha near her, alayhi on him, alayha on her. Right? الحمدللہ یہاں پہ ہماری کلاس اینڈ ہو گئی. ہمارا آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا. دعا پڑھ لیتے ہیں. May Allah help us to recite, understand, ponder, implement, propagate and memorize the Quran. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. So let's end the class. Inshallah we will meet tomorrow at the same time. دعا میں یاد رکھیے گا. Take care of yourself. اللہ حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.